Good morning, my dear brothers and sisters. सुप्रभात मेरे भाइयों और बहनों। We welcome you once again to the church service of जयवंत जीवन चर्च। और एक बार फिर से हम जयवंत जीवन चर्च की सेवा में आपका स्वागत करते हैं। We believe that you have enjoyed our last Sunday sermon. और हम ये विश्वास करते हैं कि पिछले रविवार को आपको हमारा ये संदेश पसंद आया होगा। We have been talking about making wise choices. हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम सही चुनाव करें। And last Sunday we have covered quite a few points. और पिछले रविवार को हमने कुछ बिंदुओं पे बातचीत की थी। And we believe those points were of great help to you in your Christian life. और हम ये विश्वास करते हैं कि वो बिंदु आपके मसीह जीवन में उन्होंने आपकी सहायता की होगी। Hallelujah. हालेलुया। And today we are continuing this topic. और आज हम इस लगातार इस विषय पर बातचीत करेंगे। It may take one or more Sundays और ये एक और या दो संडे और ले सकता so that है, we will be able to imprint in your heart what we desire to see in your life. तो हमारी जो इच्छा है वो आपके हृदय के ऊपर छप जाए ताकि उसको आप अपने जीवन में ठीक कर सकें। See, it's very important to make wise choices. देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सही चुनाव करना। In my life, मेरे जीवन में I saw many ministries coming down, मेरे जीवन में मैंने देखा कि बहुत सारी सेवाएं नीचे गिर गईं church being destroyed, और कलीसियाएं नाश हो गईं and families destroyed, fallen apart, और जो परिवार है वो भी अलग थलग हो गए, गिर गए, just because of one wrong choice they made in their lives, in their church, in their ministry. केवल एक गलत चुनाव उस गलत चुनाव ने उनके परिवार में, उनकी सेवा में और उनकी कलीसियाओं को खराब कर दिया। And we don't want this happen to your life. और हम ये नहीं चाहते कि ऐसा आपके जीवन में घटे। We have lot of resources, हमारे पास बहुत अधिक संसाधन हैं, heavenly resources, स्वर्गीय संसाधन, God the Father, परमेश्वर पिता, God the Son, our Lord Jesus Christ, परमेश्वर पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह and God the Holy Spirit, और परमेश्वर पवित्र आत्मा। and at the same time, और फिर on the earth we have church, और इस पृथ्वी पर कलीसियाएं, church leaders, कलीसिया के अगुए counselors, और सलाहकार and fellow believers. और साथी विश्वासी। Many of them are filled with the Spirit of God, और उनसे बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं, filled with the wisdom of God, परमेश्वर की बुद्धि से भरे हुए हैं। and you can take help from them. आप उनसे मदद ले सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You have the Word of God. आपके पास परमेश्वर का वचन है। The Bible says Jesus Christ is the wonderful counselor. बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अद्भुत सलाहकार है। If you ask our Lord Jesus, यदि आप हमारे प्रभु यीशु से पूछें, He is alive वो आजीवित है and He will give you right guidance. और वो आपको सही सलाह देंगे। Hallelujah. हालेलुया। And I would encourage you to be in association with godly people who are filled with the Spirit of God and the wisdom of God. मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ऐसे लोगों की संगति करें जो आत्मा से भरे और बुद्धि से भरे हुए लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you will be successful. तब आप सफल हो पाएंगे। You will be happy people. आप खुश होंगे And you will be effective witnesses for the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज्य के प्रभावशाली गवाह होंगे। Hallelujah. हालेलुया। So in this context, तो इस संदर्भ में we have chosen this topic. तो हमने इस विषय को चुना है। And in our church, हमारी कलीसिया में we are teaching our people to make right decisions. हम अपनी कलीसिया में सिखा रहे हैं कि लोग जो हैं वो सही चुनाव को करें। Because if you made a right choice, क्योंकि जब आप सही चुनाव करेंगे, your family will be blessed आपका परिवार आशीषित होगा and your generations will be blessed. और आपकी पीढ़ियां भी आशीषित होंगी। Hallelujah. हालेलुया। So shall we go a little further?
तो हम इससे आगे चलें। Today we are talking about few points, तो आज हम कुछ और बिंदु पर बातचीत करेंगे। and the first one is limitless choices put us in trouble. असीमित चुनाव हमको मुसीबत में डाल देते हैं। See, when there are so many options देखिए, जबकि बहुत सारे विकल्प हैं or open options, और खुले विकल्प हैं, then it is very difficult to choose one of them. तो बहुत मुश्किल होता है उनमें से एक का चुनाव करना। And we are not magicians. और हम कोई जादूगर नहीं हैं, We cannot tell you choose this or that, और हम ये नहीं आपसे कह सकते कि आप इसको चुने या उसको चुने, because every believer or every leader or every child of God has different calling. क्योंकि हर एक परमेश्वर की संतान की एक अलग अलग बुलाहट है And they have different visions to fulfill before our Lord Jesus returns. और अलग अलग दर्शन है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिनको पूरा करना So है। everyone will have to choose for themselves. तो हर एक को अपने लिए खुद ही चुनाव करना है। We can ask the Holy Spirit to help us. हम पवित्र आत्मा से कह सकते हैं कि वो हमारी सहायता करे। So when you have limitless choices, जबकि आपके पास असीमित चुनाव हैं, I would encourage you to be very careful तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप बहुत सावधान so रहें, that you will finally choose the best one of them. ताकि आप उनमें से एक अच्छे का चुनाव कर सकें। When there is best thing stored for you in Christ, जबकि मसीह में आपके लिए सबसे उत्तम चीज रखी हुई है, then why you are going to choose the second hand? तो फिर हम दूसरी चीज को क्यों चुने? Receive the anointing, that means fresh anointing, brand new anointing, तो फिर नया ताजे तेल को अभिषेक को प्राप्त करें, new vision, नया दर्शन, new calling, नई बुलाहट, and accordingly you will choose the things that are necessary for your life. तो तब आप अपने जीवन के लिए जो आवश्यक होगा उसका आप चुनाव कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's wonderful ये अद्भुत to है make choices, कि हम सही चुनाव करें, but choices themselves are not sufficient to give you fulfillment in your life. तो जो चुनाव है वो आपको उस प्रकार से तसल्ली नहीं दे पाएंगे कि आप उसको कैसे पूरा करना है। Hallelujah. हालेलुया। So limitless choice, when you face, you need to be extra careful and wise. जब आप असीमित चुनाव करते हैं तो आपको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। And then sometimes when we ask people, they say, I don't have any choice to choose. और कई बार हम जब लोगों से बातचीत करते तो कहते हैं कि मेरे पास कोई चुनाव ही नहीं है कि मैं चुनाव को कर सकूं। That means not choosing is a choice. तो इसका अर्थ है कि ना चुनना भी एक चुनाव है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, it's important that you choose something ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ चुनें according to the word of God. परमेश्वर के वचन के हिसाब से। If you don't choose for yourself, यदि आप अपने लिए चुनाव नहीं करते you हैं are opening the door for devil to choose for you. तो फिर आप शैतान के लिए द्वार खोलते कि वो आपके लिए चुनाव करे, Or the unbelievers or the world will choose for you. और फिर जो अविश्वास संसार के अविश्वासी लोग हैं वो आपके लिए चुनाव करें। When I came into the ministry, और जब मैं सेवा के अंदर आया then many people suggested me different things. तो बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग प्रकार की सलाहें देने लगे। Some were giving very good suggestions, कई लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, but sometimes many people did not give me right choices to choose. तो कई बार लोगों ने मुझे अच्छे सलाह नहीं दिए कि मैं सही चुनाव कर सकूं। Then it became very hard for me to choose the right thing. तो फिर मेरे लिए बहुत कठिन हो गया कि मैं सही बात का कैसे चुनाव करूं। And that is why we want to help you, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपकी सहायता that करें you must be surrounded with the people who are filled with the wisdom of God. कि आप ऐसे लोगों के साथ घिरे रहें जो बुद्धि से भरे हुए लोग हों। Yes, they must be filled with the Spirit of God, जी हाँ, ये जरूरी है कि वो परमेश्वर के आत्मा से भी भरे हों, but at the same time they must be filled with the wisdom of और God. लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की बुद्धि से भरे हुए लोग हों। You know, Apostle Paul told us अब जानते हैं प्रेरित पौलुस ने हमको सिखाया है that
Spirit of God and the wisdom of God both are important. कि परमेश्वर का आत्मा भी महत्वपूर्ण है और परमेश्वर की बुद्धि भी महत्वपूर्ण None of them is superior or inferior. और कोई भी उनमें से बड़ा और उनमें से कोई भी छोटा नहीं So when है। you have good people, तो जब आपके पास अच्छे लोग हों, wise people, बुद्धि से भरे लोग हों, God's people, परमेश्वर के लोग they हों, will help you to choose the right thing. तो वो आपकी सहायता करेंगे कि आप सही चुनाव को करें। And you have your parents as well. और आप ऐसे आपके पास माता पिता भी आपके पास हैं And your parents will help you to choose the right thing. और आपके माता पिता आपकी सहायता करेंगे कि आप सही चीजों का चुनाव करें। Only thing you have to be obedient. केवल इतना करना है कि आपको उनकी बात को मानना है। Your parents are not your enemies. आपके जो माता पिता हैं वो आपके शत्रु नहीं हैं। They are your actually parents. वो वास्तव में आपके माता पिता They हैं। desire to see good happening in your life. वो चाहते हैं कि आपके जीवन में सही चीज हो। So be obedient to your parents. तो अपने माता पिता की आप आज्ञाकारी बन। Waiting is not a wise choice. इंतजार करना सही चुनाव नहीं है Because everybody wants confirmed ticket, not wait listed tickets. हर एक जो है वो कंफर्मेशन चाहता है, वो इंतजार नहीं करना चाहता। When we travel by train, जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं, we book a ticket हम एक टिकट को बुक करते हैं and there are so many categories. और बहुत सारी श्रेणी होती हैं। If you have confirmed ticket, you are so happy. यदि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाती है, If it is waitlisted, यदि आप सूची में हैं, इंतजार की सूची में हैं, then you are not so happy. तो तब आप खुश नहीं होते हैं। So wait listing is not good idea. तो जो इंतजार करने की सूची है वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। You don't have to wait for long time. आपको बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। See, if God is calling you today, यदि आज परमेश्वर आपको बुलाता you है must respond to Him. तो आपको उसको उत्तर देना होगा। Take time and prepare yourself. आप समय लें और अपने आप को तैयार करें। Suppose God is calling you for a village ministry. आप मान लीजिए यदि परमेश्वर आपको गांव की सेवा के लिए बुलाता है, Don't run to that village immediately. तो उस गांव में तुरंत ही ना भाग लें, But you have to respond to the call of God immediately. लेकिन आपको जो परमेश्वर की बुलाहट है उसका आपको तुरंत उत्तर देना होगा। Confirm it. उसको आप कंफर्म करें, Share with God's people. परमेश्वर के लोगों के साथ बांटें We have to arrange things. और हमको चीजों को प्रबंध करना होगा। And then God will give us appropriate time so that we can start the ministry in a village. तब परमेश्वर हमको सही समय देगा ताकि हम गांव के अंदर सेवा को आरंभ कर सकें। So the point here is तो यहाँ पे जो बिंदु है वो ये है that don't wait for a long time. कि लंबे समय तक इंतजार ना It करें। is called procrastination. और ये कहलाता है देरी करना। Every time you have the time and you are still waiting. और जब आपके पास समय है तभी आप इंतजार कर रहे हैं, That's not good idea. और ये एक अच्छा चुनाव नहीं है। You have to be wise while choosing the right thing. तो आपको सही चीजों में सही बात का चुनाव करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। You cannot choose two masters at the same time. आप एक ही समय में दो स्वामियों को नहीं चुन सकते The हैं। Bible says, बाइबल कहती है, our Lord Jesus tells us in the Bible हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में सिखाया है that you cannot choose God and at the same time money. कि आप परमेश्वर को और धन को दोनों को एक साथ नहीं चुन सकते हैं। Money is good thing. धन जो है वो अच्छी चीज है। Everybody wants money. हर एक जो है वो धन को चाहता It's है। useful in every aspect of life. वो जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है, But it should not be your master. लेकिन वो हमारा स्वामी नहीं है। Our master is Jesus Christ. हमारा जो स्वामी है वो प्रभु यीशु है। He is our Lord. वो हमारा प्रभु है। He will supply our needs. वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। So we cannot choose two masters in our lives. तो हम अपने जीवन में दो स्वामियों का चुनाव नहीं कर सकते I हैं। see many believers. मैंने बहुत सारे विश्वासियों They को have देखा है, more than two masters. उनके दो से अधिक स्वामी हैं। World संसार and devil, और शैतान, money, पैसा, their ambition. उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं। So you cannot choose all these things as your masters in your life. तो आप अपने जीवन में इन सारी चीजों को नहीं चुन सकते हैं। So when you make decisions or make
choices, तो जब आप निर्णय लेते हैं या चुनाव करते हैं you need to keep in mind तो आपको अपने मन में इस बात को रखना the होगा। Bible tells us that we have only one master in heaven. तो बाइबल कहती है कि हमारा स्वर्ग के अंदर केवल एक ही स्वामी है। Hallelujah. हालेलुया। We believe this, you are enjoying this teaching. हम ये विश्वास करते हैं कि आप इन शिक्षाओं का आनंद उठा रहे If हैं। you are able to understand it, यदि आप इसको समझ गए you will never fail. तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। Hallelujah. हालेलुया। We have prepared this with much prayer, हमने इसको बहुत अधिक प्रार्थनाओं के साथ तैयार किया है and we want you to be benefited by these teachings. तो हम ये चाहते हैं कि इन शिक्षाओं के द्वारा आप लाभ प्राप्त करें। Then others cannot choose for you. तब दूसरे लोग आपके लिए नहीं चुन सकते। You can choose for yourself and for your family. तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए आपको खुद ही चुनाव करना है। This is very good idea. ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। You have to choose for yourself. आपको अपने लिए खुद ही चुनाव करना Take है। help from godly people. परमेश्वर के लोगों की सहायता लें Choose the best thing for yourself and your family. तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा चुनाव करें। It's not good option to leave the choices on others, those who would decide for you. ये अच्छा नहीं होगा कि आपके बारे में कोई दूसरा चुनाव करे। Because you have your own choices. क्योंकि आपके खुद के अपने चुनाव हैं। Hallelujah. हालेलुया। And then you have the right to choose. तब आपके पास ये अधिकार है कि आप सही चुनाव करें। You need to use your right. आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। Hallelujah. हालेलुया। This is God given right. ये परमेश्वर की ओर से आपको अधिकार दिया गया है। Right from the beginning of the Bible, बाइबल के आरंभ ही से है। God has given this freedom to man so that he or she can choose according to his desire or her desire. परमेश्वर ने उसको ये इच्छा दी है कि वो अपने लिए स्त्री या पुरुष खुद ही चुनाव करें। We have already made it clear that our God has not put the remote control of our lives in his hands. हमें पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो अपने हाथ में रिमोट को नहीं रखता है हमारा चुनाव करने के लिए। He only gives options to us. वो केवल हमको विकल्प देता है कि हम चुनें You choose Christ or you choose the eternal death. कि या तो आप मसीह को चुने या फिर आप अनंत काल की मृत्यु। You choose God or you choose Satan. कि आप परमेश्वर को चुने या पर शैतान को चुने। You choose good or you choose bad. कि आप सही को चुने या फिर आप गलत को चुने। This is in your hand. ये आपके हाथ में है। Even when we talk about the salvation in Christ, यहाँ तक कि हम मसीह में उद्धार की जब बातचीत करते our हैं Lord also made it very clear that those who are thirsty, they may come to me. हमारे प्रभु ने अपने वचन में बताया कि हरे वो जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। Our Lord never compelled anyone to come to him. हमारा परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता कि वो उसके पास आए। And at the same time, even God's people do not pressurize anyone to accept Christ. यहाँ तक कि परमेश्वर के लोग भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते कि कोई प्रभु को स्वीकार करे। What we have received in our heart, it has given us joy and salvation. जो कुछ हमारे हृदय के अंदर है उद्धार आनंद We explain it to people तो हम उसको लोगों को बताते हैं so that they will also receive salvation and the joy of salvation ताकि from वो- the Lord Jesus Christ. ताकि वो परमेश्वर की ओर से उद्धार को और आनंद को वो प्राप्त करें। But this is up to them. ये लेकिन उनके ऊपर निर्भर करता They may है। choose it वो उसको चुन सकते हैं or they can reject it. और वो उसका तिरस्कार भी कर सकते हैं। We are free from our duties. हम अपने कर्तव्य से स्वतंत्र हैं। Hallelujah. हालेलुया। An individual's choice will take them either to heaven or to hell. हर एक का व्यक्तिगत चुनाव या तो उनको स्वर्ग ले जाएगा या फिर उनको नरक ले जाएगा। You cannot put anyone in the hell or in heaven. हम किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग में या नरक में नहीं डाल सकते हैं। Why? क्यों? Because we cannot choose for them. क्योंकि हम उनके लिए चुनाव नहीं कर पाएंगे। People have to choose for themselves. लोगों को अपना चुनाव स्वयं करना है। So it's very important to understand. तो इसको बहुत अधिक ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। Heaven and hell are real places. स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान है। And God cannot put
anyone in heaven or in the hell. परमेश्वर किसी को स्वर्ग में या किसी को नरक में नहीं डाल सकते। He has given the human race the freedom to choose one of them. परमेश्वर ने मनुष्य को यह विकल्प दिया है कि वो चुनाव करे कि उसको क्या चुनाव करना है। So how wonderful our God is. तो हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। We can choose Christ if we want to go to heaven. यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप मसीह का चुनाव कर Because सकते हैं, he has said that I am the way, the truth and the life. क्योंकि उसी ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, Without me nobody can go to heaven. कि मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर So it सकता will be है। wise choice for you to believe in Christ. तो ये एक अच्छा विकल्प होगा कि आप एक बुद्धिमानी के साथ मसीह को स्वीकार करें। But no one is going to compel you to accept Christ. लेकिन कोई भी आपको ये दबाव नहीं डाल सकता है कि आप मसीह को स्वीकार करें। God himself will not force upon yourself his will. और परमेश्वर भी अपनी इच्छा आपके ऊपर नहीं डाल सकता है, Because it is you who have to decide. तो क्योंकि वो आप ही हैं जिसको ये निर्णय लेना है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to understand तो हमको इस बात को समझना होगा that the choices that we make, they have last long impact. तो हमको इस बात का चुनाव करना होगा कि जो हमारा चुनाव है वो हमारे अंतिम समय तक एक अच्छा प्रभाव डाले। Hallelujah. हालेलुया। People can add values to your life लोग आपके जीवन में मूल्यों को डाल सकते हैं and they can also take away values from your life. और वो आपके जीवन में से वो जो मूल्य हैं उनको भी निकाल सकते हैं। And therefore you have to understand whom you are running with. तो इस बात को आपको समझना होगा कि आप किसके साथ दौड़ रहे हैं। If you are walking or running with wise people, यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ जो दौड़ते हैं या चलते हैं then they will add the values to your life. तो वो आपके जीवन के अंदर मूल्यों को डालते जाएंगे। And if you are running with foolish people, यदि आप मूर्ख लोगों के साथ दौड़ रहे हैं, those who don't understand the value of life, जो जीवन के मूल्यों को नहीं समझते value हैं, of time, समय को नहीं समझते हैं and in fact they have no aim for their life. और वास्तव में उनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, They are just passing their time. वो केवल अपना समय को पास कर रहे हैं। If you are living with them, यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, following such people, ऐसे लोगों का आपका पालन आप करते हैं, running with such people, ऐसे लोगों के साथ आप दौड़ रहे हैं, then it will be a foolish decision. तो ये मूर्खतापूर्ण आपके फैसले होंगे। You have to choose wise people तो आपको बुद्धिमान लोगों को चुनना होगा so that you can make the decisions in your life wisely. ताकि आप अपने जीवन में सही निर्णयों को कर सकें। Even the friends, though even your friends have the capacity to take away everything that has been invested by your parents. यहाँ तक कि आपके मित्र भी, जो आपके माता पिता ने आपके अंदर मूल्यों को डाला है, उनको आपके मित्र खींच सकते हैं। So it's wise choice to make right and good friends in your life. तो ये आपको एक सही मित्रों का अपने जीवन में चुनाव करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। So this is all that we want to talk to you this morning. और यही था हमारे पास आज की सुबह आपसे बातचीत करने के We'll लिए। continue to emphasize that wise choice will take you higher and higher in your life. तो हम लगातार आपको इस बात को बताते सिखाते रहेंगे कि आप अपने जीवन में सही चुनाव करें ताकि आप और अधिक ऊंचा और ऊंचा बढ़ते चले जाएं। Whatever you have built in this life, आपने जो कुछ अपने जीवन में बनाया है it will remain last long. तो वो हमेशा के लिए वो बना रहेगा। The Bible says बाइबल कहती है in the book of John, यूहन्ना की पुस्तक में, the Bible says बाइबल कहती है in the Gospel of John यूहन्ना के सुसमाचार में that God has called us to bear much fruit कि तुम परमेश्वर के लिए बहुत अधिक फल लाओ and fruit that will last long. तो ताकि तुम्हारा फल जो है वो बना रहे। If we don't make wise decision, यदि हम सही फैसले नहीं लेते हैं the fruit in your life, they will not remain for last long. तो जो फल आप लाए हैं वो फिर हमेशा तक के लिए नहीं बने रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Make wise choice, my friends. मेरे प्रिय मित्रों, सही फैसला करें।
करें। Ask God to help you. आप परमेश्वर से मदद को Read मांगें, the Word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ें, Understand it. उसको समझें। And the Word of God will tell you which way you have to go. तब परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि आपको किस मार्ग पे चलना है। Next Sunday we will discuss some verses from the Bible और अगले रविवार को हम बाइबल से कुछ पदों को लेंगे where God gave choices to the people to make. जहाँ परमेश्वर ने लोगों को विकल्प दिया कि वो इन बातों का चुनाव करें। Hallelujah. हालेलुया। So shall we pray together? आइए हम मिलकर के साथ प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this time that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते समय के लिए जो आपने हमको दिया। We thank you for God's people हम धन्यवाद करते परमेश्वर के लोगों के who लिए are here जो यहाँ पर मौजूद and at हैं, the same time who are watching this video. जो इस वीडियो को देख रहे हैं। We pray that your Holy Spirit will help them आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे so that they can make wise decisions in their life. ताकि वो अपने जीवन में सही फैसलों को कर सकें। Lord, we pray परमेश्वर हम प्रार्थना that करते you will हैं reveal to them कि आप उनके ऊपर प्रकट करें what is the best for their lives, कि उनके जीवन के लिए सबसे अच्छा क्या है। their family, उनका परिवार, their ministry, उनकी सेवा, their business, उनके व्यापार, everything. हर एक चीज। Lord, the Bible says प्रभु बाइबल कहती है that we cannot do anything apart from you. कि हम आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर So सकते we हैं। need your help. तो हमें आपकी आवश्यकता है। Help our people हमारे लोगों की सहायता so करें that they will make wise choices. ताकि वो सही चुनाव को कर सकें। Thank you, Father. धन्यवाद And पिता। in Jesus' mighty name we pray. और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। Amen. आमेन Amen. और आमेन। God bless you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। Next Sunday we'll meet again. और अगले रविवार फिर से मिलेंगे। Until then, God be with you. और तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। Enjoy the day with the Lord और परमेश्वर के साथ अपने दिन का आनंद मनाएं and in your family. और अपने परिवार का भी। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।